Hello, my dear students. We'll discuss today the foundation part of biology, and that is all related with cell. अब इसमें जो मैं टॉपिक्स आपको करवा रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स आपके 9th की बायो में हैं और कुछ टॉपिक्स हैं वो एनटीएससी लेवल के हैं, और यही सब टॉपिक्स जो कंपटीशन का साइंस आता है उसके अंदर भी आता है। तो आज की जो क्लास है वो एक फाउंडेशन क्लास है और ये कंपटीशन का जनरल साइंस है। वी हैड कवर्ड द टॉपिक सेल, चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। वी हैव वन टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। The transportation across cell membrane, it is done by three methods: passive transport, active transport and bulk transport. पहला है passive transport. This is the transportation across the cell membrane without the expenditure of energy along the concentration gradient, that is from higher concentration to lower concentration. यहां पर एनर्जी का यूज नहीं होगा, तो ये एक फिजिकल चेंज होगा, or there will be the movement of the molecules or the gases or the substances from their higher concentration to lower concentration, and that is what passive transport. The passive transport, it occurs by two methods. The one is diffusion and another one ऑस्मोसिस। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। द सेकेंड वन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस इज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। The movement of water, salts and ions from soil to the roots. This is the active transport. Active transport occurs by the expenditure of energy. Active transport एक बायोकेमिकल मेथड है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट एक फिजिकल मेथड है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक बायोकेमिकल मेथड है। सो दिस इज व्हाट पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट, this is the movement of the substances or the molecules or the fluids or the food materials in the bulk amount, in the large amount. That is bulk transport. Bulk transport, it is by two methods, that is endocytosis and exocytosis. Endo यानी in and exo यानी out, and this will discuss by the example of amoeba. Amoeba एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है
और अमीबा का ये प्लाज्मा लेमा है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. Inside the plasma membrane or the plasma lemma there is a cytoplasm. I will explain endocytosis and exocytosis by taking the topic nutrition in amoeba. As the food particle approaches near amoeba, from the plasma lemma, an outgrowth is formed, and that outgrowth, this is known as pseudopodia. It is pseudopodia. सूडो यानी फॉल्स, पोडिया यानी फुट. भाई अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. और फुट, दिस इज फुट, ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. जब अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, देन हाउ द अमीबा कैन हैव अ फुट. तो इसीलिए बोला इसको फॉल्स फुट, ये झूठ मूठ का फुट है, ये झूठ मूठ का ऑर्गन है. सो देयर विल बी वन मार्क क्वेश्चन. What temporary structure develops in amoeba to take the food? This structure is pseudopodia. The pseudopodia enlarges and it touches with the another end of plasma lemma, and the food particle is surrounded by a temporary structure, and this is known as food vacuole. This food vacuole, it acts as temporary stomach. This taking of food by the amoeba is known as phagocytosis, and this taking of food by the amoeba is also known as endocytosis. Across the plasma membrane from extracellular surrounding, whatever the food or the material is taken in is known as endocytosis. The taking of the food or the material from the extracellular surrounding across the plasma membrane inside the cell, this is known as endocytosis. Here अमीबा एक फूड ले रहा है, ये एक सॉलिड फूड ले रहा है, तो उस एंडोसाइटोसिस को बोलेंगे फैगोसाइटोसिस. उस एंडोसाइटोसिस को बोलेंगे फैगोसाइटोसिस. वैसे फैगोसाइटोसिस का मीनिंग है द सेल ईटिंग. वैसे फैगोसाइटोसिस का मीनिंग है द सेल ईटिंग. Amoeba is the single cell and the cell is eating the food, so this is known as phagocytosis. Now this food vacuole, it acts as a temporary stomach, and in the cytoplasm there are lysosomes. Lysosomes, they contains various digestive enzymes, and the lysosomes, they enter into the food vacuole and burst,
and they releases the various digestive enzymes, and with the help of various digestive enzymes the digestion of food occurs in the food vacuole. That is, the complex form of food materials converts into simpler form. That is, the complex form of food materials converts into the simpler form, so the digestion occurs into the food vacuole. After digestion, the simpler form of food from food vacuole, it comes in cytoplasm, and that is known as absorption. That is known as absorption. The food which is absorbed in the cytoplasm is utilized to get energy, repair and growth, and जिसे हम कहते हैं assimilation, just utilization of the digested and absorbed food. Now this food vacuole, now it is containing undigested food, क्योंकि फूड वैक्यूल के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड था वो साइटोप्लाज्म में आ चुका है. अब फूड वैक्यूल के अंदर है अनडाइजेस्टेड फूड. तो जो फूड वैक्यूल है कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड, ये है नॉन मोटाइल. दैट इज ये है स्टेशनरी. और जो अमीबा इटसेल्फ, ये है मोटाइल, मतलब इट कैन मूव. तो फूड वैक्यूल स्टेशनरी है, कैन नॉट मूव. अमीबा मोटाइल है, इट कैन मूव. होगा क्या? अमीबा will move forward. When the amoeba will move forward, this food vacuole containing undigested food, ये पीछे टकराएगी. It strikes with the rear end. क्योंकि ये स्टेशनरी है, प्लाज्मा लेमा रप्चर होगी और फूड वैक्यूल बाहर निकल जाएगा along with undigested food, and this removal of the food vacuole along with undigested food, this is known as exocytosis. This is known as exocytosis. So होगा क्या? The food vacuole containing undigested food, it is stationary, and amoeba is motile. When amoeba will move forward, this food vacuole containing undigested food, it strikes with the rear end, and this plasma lemma ruptures, and the food vacuole containing undigested food, it is removed from amoeba, and this is exocytosis. अमीबा आगे मूव कर जाएगा. तो अमीबा ने एक तरह से अपना अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाला है बाय एक्सोसाइटोसिस, और अमीबा खाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस. सो इन ओवरऑल, taking of food inside the body of amoeba across the membrane, that is endocytosis, and the removal of the undigested food from the amoeba along this vacuole, वो एक्सोसाइटोसिस है. जो एंडोसाइटोसिस है वो दो तरह का है, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस. If amoeba is taking any liquid food or the liquid substance, वो है पिनोसाइटोसिस.
So simply say pinocytosis is cell drinking. This is cell drinking. मतलब अमीबा पीता है, पीता मीन्स कोई भी लिक्विड लेता है, तो वो है पिनोसाइटोसिस. सो द सेल ड्रिंकिंग दैट इज नोन एज पिनोसाइटोसिस. तो जब अमीबा पीता है वो तो पिनोसाइटोसिस है, और साथ में कुछ खाता है वो फैगोसाइटोसिस है. तो अमीबा है, पीता है, वो पिनोसाइटोसिस है, और अमीबा कोई सॉलिड फूड खाता है वो फैगोसाइटोसिस है. सो द टेकिंग ऑफ any fluid or the liquid across membrane from extracellular medium inside the body of amoeba, this is pinocytosis, the cell drinking. And taking of the solid food inside the amoeba across membrane is phagocytosis. It is simply the cell eating. So ये एक अच्छा टॉपिक है. The transportation across membrane, it is of 3 types. Passive transport which occurs without the expenditure of energy. ये एक physical change है. It occurs by diffusion and osmosis. ऑक्सीजन का लेना, CO2 का छोड़ना, पानी का लेना, पानी का बाहर निकालना, ये सब पैसिव ट्रांसपोर्ट से है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स का, आयंस का लेना और बाहर निकालना, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक बायोकेमिकल मेथड है. थर्ड वन बल्क ट्रांसपोर्ट. बल्क ट्रांसपोर्ट मेनली फूड से रिलेटेड है. ये 2 तरह का, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. अमीबा कुछ खाता है वो एंडोसाइटोसिस है, और अमीबा अपना अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकालता है, एक्सेस ऑफ मटेरियल्स बाहर निकालता है, वो एक्सोसाइटोसिस है. एंडोसाइटोसिस 2 तरह का है, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस. कुछ भी अमीबा ड्रिंक करता है वो पिनोसाइटोसिस है, कुछ भी सॉलिड फूड खाता है वो फैगोसाइटोसिस है. ओके, तो ये हमारा बेटा टॉपिक हुआ. एक इट इज अ गुड टॉपिक, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है. नाउ थोड़ी सी जनरल डिस्कशंस. वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वैक्यूल्स स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स है. वैक्यूल्स दे विल द स्टेप वैक्यूल, जैसा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में है. फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. अमीबा के साथ एक प्रॉब्लम है. अमीबा में क्या है, उसकी बॉडी में पानी घुसता रहता है, वो अपने एक्सेस ऑफ वाटर को बाहर निकालता रहता है वैक्यूल्स में भर भर के, जिनको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बोलते हैं. तो दे आर थ्री टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स. अब बेटा यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और है कि सेल से वो 2 तरह के हैं. एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल्स विच आर द प्रिमिटिव सेल्स, जो दुनिया के सबसे सिंपलेस्ट सेल्स है. इस दुनिया में सबसे पहले जो सेल्स आए वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया में है, साइनोबैक्टीरिया में है, ब्लू ग्रीन एल्गी में है, इनमें होगा प्रोकैरियोटिक सेल, जहां पे ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट. जो जेनेटिक मटेरियल होगा इट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होगी. और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोलस नहीं होगा. जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोइड. क्या बोलेंगे उसको? न्यूक्लियोइड. हमारे जो सेल्स हैं वो है यूकैरियोटिक. अमीबा का सेल है वो है यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक सेल क्या है? अभी तक आपको मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है वो यूकैरियोटिक सेल है. इट हैव द ट्रू न्यूक्लियस, genetic material is present inside the nucleus, membrane bound cell organelles are present. तो हमारा ये जो एडवांस सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक सेल है. सेल का इससे पहले जो मैंने आपको क्लासेस दिए हैं वो आपका बेसिकली आपका एनसीईआरटी का सिलेबस अच्छे से कवर करता है. आज मैंने आपको जो क्लास दी है वो ये आज आपका ये फाउंडेशन बायोलॉजी है.
ये बायोलॉजी आपका एनटीएससी क्लासेस में काम आएगा, ये लेटर ऑन आप जीवन में कोई भी कॉम्पिटिशन देंगे हर कॉम्पिटिशन में काम आएगा। थैंक यू।